बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने सेकंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है और 3 चैप्टर्स आपके पास इस यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। उसमें पहला चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, सेकंड है द लिटिल गर्ल और थर्ड है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये दोनों आपके दोनों जो बुक्स आपकी रीडर और सप्लीमेंट्री उनसे ये तीनों चैप्टर आने वाले हैं और इनसे हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके पास इस यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला है और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए उन 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है अक्टूबर में, उसमें भी ये मार्क्स ऐड होते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। आंसर केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही हैड नो टाइम टू स्पीक टू हर अफेक्शनेटली। ऑन द अदर हैंड ही रिमार्क्ड एडवर्सली। क्वेश्चन नंबर 2 हु आर द पीपुल इन केजियाज फैमिली। आंसर लिखेंगे आप केजिया हैज हर मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर इन फैमिली। Question number 3 how does Toto come to grandfather's private zoo? Answer grandfather bought Toto from a Tanga driver for the sum of 5 rupees. Toto looked so out of place with the Tanga driver that grandfather decided to add him to his private zoo. Question number 4 in what ways is Iswaran an asset to Mahindra? Answer Iswaran was the cook of Mahindra. Iswaran was quite attached to Mahindra and followed him without any complaint wherever he was posted. He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. Thus Iswaran was an asset to Mahindra. Question number 5 Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Answer लिखेंगे आप Toto was a pretty monkey because he was a little one with bright eyes. His teeth were white as a pearl. His long tail added to his good look. 6. Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was the different from Kezia's father? Answer लिखेंगे Mr. McDonald was Kezia's next door neighbor. He had 5 children and loved them all. Kind of father. Mr. McDonald was a loving father. He spared time to play with his children in the evening. He played tag with his children. He ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once the boys turned the house of him and house on him, and he tried to catch them laughing. How different! Mr. McDonald was quite different from Kezia's father, who had no time to play and talk with his only child. She was always afraid of her father. He beat her unkindly for tearing his papers. Conclusion both the father were quite opposite of. Question number 7 what did Einstein call his desk drawer at the patent office? Question number 7 what did Einstein call his desk drawer at the patent office? Answer Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics because it contained the papers in which Einstein had developed his ideas on physics. Question number 8 why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Answer Einstein knew that the Nazis in Berlin had discovered nuclear fission and they could make atom bomb
An atom bomb, if exploded, would bring about enormous destruction. At the urging of a colleague, he wrote to Franklin Roosevelt, the President of America, as a warning. Question number 9. Why does the world remember him as a world citizen? Answer. Einstein worked for the welfare of human beings in the science and politics. Hence, he is remembered as a world citizen. Question number 10. Choose a suitable preposition from those given in the brackets and fill in the blanks in the sentences. He jumped off the wall. She is a member of my teaching staff. इसकी आगे वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा। दो प्रीपोजिशन है, ऑफ ओ एफ ऑफ और दूसरा ओ एफ एफ ऑफ। इनका, और जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी बच्चों ने, जो ध्यान नहीं देते, वो समझेंगे ऑफ गलती से एक ऑफ और लग गया, एक लग गया, तो ऐसा नहीं है। ऑफ अलग है, ओ एफ एफ ऑफ अलग है। इनका प्रयोग कैसे होता है? ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, वह दीवार से कूदा। दीवार से अलग होने की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे, तो जब अलग होने का भाव हो तो वहां पर ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग करना है। ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, वॉल से वह कूदा, वॉल से अलग हो गया। और दूसरा ओ एफ ऑफ संबंध स्थापित करने वाला प्रीपोजिशन है। इसमें जैसे उदाहरण से समझेंगे, शी इज ए मेंबर ऑफ माई टीचिंग स्टाफ, वह मेरे टीचिंग स्टाफ की एक सदस्य है। तो इस तरह से ऑफ का प्रयोग और ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग आपने जाना है, उसके भेद को भी आप समझ गए हो। भेद में अंतर, उनके ऑफ का प्रयोग कहां पर होगा, ओ एफ एफ का प्रयोग किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? Einstein knew that Nazis in Berlin had discovered nuclear fission and they could make atom bomb. An atom bomb, if exploded, would bring about enormous destruction. At the urging of a colleague, he wrote to Franklin Roosevelt, the President of America, as a warning. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction of Hiroshima and Nagasaki after they were bombed. Between, in front of और behind का प्रयोग। Between का प्रयोग सामान्यतः दो के मध्य किया जाता है। In front of का प्रयोग सामने के लिए किया जाता है और behind का प्रयोग पीछे के लिए, किसी वस्तु के पीछे होना, उसके लिए किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग देखो, उसका घर दो पेड़ों के बीच में है, तो वहां पर बीच में है जो, वो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। हिज हाउस इज बिटवीन टू ट्रीज। अगला है इन फ्रंट ऑफ के लिए, महेश हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा है, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, जैसे महेश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हेलीकॉप्टर। इस तरह से इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा यहाँ पे। बिहाइंड के लिए, उसका चेहरा पत्ती के पीछे है, कैसा बोलेंगे इसको, हर फेस इज बिहाइंड द लीफ। यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग लगेगा, पीछे के लिए बिहाइंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन, कुड, मे एंड माइट। मे, कुड और माइट, इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, ये आपने भरना है। तो इसमें इसके पीछे जो लिखा है ये इसका आंसर है, ठीक है। जैसे ये होगा, मे यू लिव लॉन्ग, दूसरा कुड यू रीड व्हेन यू वर 5, माई फादर कैन स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। इस तरह से आपने देखना है। 14वां हो गया। प्रश्न नंबर 15. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन, कुड, मे एंड माइट। चौथा है, यू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। तो इसमें आपने यहाँ पर मे भरना है। वी थॉट इट माइट रेन होता है ना, तो यहाँ पर आपने माइट भरना। ही सेड ही कुड ऑलवेज कम व्हेन कॉल्ड, कुड भरा गया है इसमें। यहाँ पर क्या भरोगे, कैन। कैन यू राइड योर बाइसाइकिल अप दैट हिल। आगे, आई रेन फास्ट सो दैट आई कुड कैच द ट्रेन।
he tried to solve the sum but could not। तो इस तरह से मे, कैन, माइट, कुड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के सेंटेंस बदल के आ सकते हैं, आपने उनका प्रयोग करना है। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।